So first question से शुरू करते हैं. Ma'am, why did you choose this pediatric branch? Like, what were the pros that actually influenced you to take this branch? मुझे सर्जरी नहीं लेनी तो सर्जिकल ब्रांचेस वेयर तो आप क्या चाहोगे कि कौन पीडियाट्रिक्स लेना चाहिए? इफ यू आर पेशेंट एनफ टू डील विद इसकी कॉन्स क्या है मैम? hectic residency is much more hectic because Hello everyone, this is Dr. Garima Khandelwal from ProMed Mentor. So आज है बारी हमारे pediatric branch की. So I'll introduce my colleague. No, I'll not introduce herself. Let her introduce herself, ma'am. hi, this is Dr. Garima Sharma, currently pursuing MD Pediatrics. Okay. Sir, ma'am, which year? I'm first year resident, Okay. So soon to be second year. soon to be second year. Yes, waiting for juniors. So, ma'am, हमारे कुछ सवाल है. हाँ. We are making this video to have a proper insight about this particular branch. So, I'm very thankful that you're here and have given your precious time to take your interview. And actually, we like, ma'am अभी duty पे है, तो इसी वजह से हम हॉस्पिटल में हैं. मैम स्क्रब पे है, स्क्रब पहने हुए हैं. So let's start. So first question से शुरू करते हैं. Ma'am, why did you choose this pediatric branch? Like, what were the pros that actually influenced you to take this branch? मुझे सर्जरी नहीं लेनी तो सर्जिकल ब्रांचेस वेयर आउट ऑफ क्वेश्चन. मतलब मेडिसिन वाले ब्रांचेस अच्छा लगता है, मेडिसिन साथ अच्छा लगता है, तो नैरोड इट डाउन एमडी मेडिसिन और एमडी पेडियाट्रिक्स. आई वांटेड टू वर्क विद चिल्ड्रन. Okay. So यही बचा था मेरे लिए. आई रियली लव दिस ब्रांच. आई लव वर्किंग विद चिल्ड्रन एंड दे मेक यू फील गुड. Nice. So you were very passionate about this branch, और हाँ. like ठीक है, मिल रहा था, ले लिया. या आई फिर- ऑलवेज वांटेड टू बी अ पीडियाट्रिशियन. Yes, correct. Nice. So मतलब यूजुअली लोगों में ये रहता है कि अगर आप मेडिसिन या पीडियाट्रिक के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो, तो व्हाट इज योर एडवाइस कि अगर मेडिसिन भी मिल रहा है और पीडियाट्रिक भी मिल रहा है, तो आप क्या चाहोगे कि कौन पीडियाट्रिक्स लेना चाहिए, जिनको पीडियाट्रिक्स लेना चाहिए? इफ यू आर पेशेंट एनफ टू डील विद पेशेंस चाहिए. इफ यू हैव दैट much of that amount of patience, then you should definitely choose pediatrics because it will never go out of fashion. यहाँ पर बच्चे को थोड़ी सी सर्दी खांसी होती है, people come to you. Medicine में people do self medicate, they go to quacks on a much higher frequency. यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलेगी. यहाँ पे फर्जी ट्रीटमेंट बहुत कम होते हैं. Okay. So they come to you even for the smallest of issues. So that does make a difference. Yes. So I think मेरे हिसाब से this is the passion and this is the favoritism towards the kids and the patients which is leading a particular person to take this branch. Am I right, ma'am? Yes. Yes. Because earning हो सकता है मेडिसिन में ज़्यादा है, but pediatrics will never go out of fashion. People will come to you. People will rely on you. They'll trust on you. Medicine में people will question you. और अभी Okay. मेडिसिन में saturation भी आ रहा है. Right. तो फिर I guess I'm more inclined towards my branch. Your branch. Oh, okay. So these are the pros. Let's go on with the cons. इसकी cons क्या है, ma'am? Hectic residency is much more hectic because medicine में you can take help of interns. Pediatrics में people are like नहीं, आप छोटे डॉक्टर को नहीं दे सकते करने, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे बच्चे पे आप उनको नहीं सीखने दे सकते हैं. तो रेजिडेंसी इज मच मोर हेक्टिक. पेरेंट्स को रिएश्योर करना टेक्स अ लॉट मोर टाइम. ठीक है, नहीं भैया तुम्हारा बच्चा ठीक है, ही विल गेट बेटर. दिस टेक्स a lot of time. This takes a lot of time and you have to be very, very patient with them. A kid dying will hurt you much, much more than an elderly man dying. Right. So the emotion part, you have to keep it in control. So cons hai, if you're emotional, if you're too emotional, then each and every child death will hurt you. ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप मुझे बच्चों को टच भी करने से मेरे को बहुत डर लगता था. तो आई कैन एक्चुअली थिंक मैम की सिनेरियो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. एज अ फर्स्ट ईयर रेसिडेंट इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब टू बी अ पीडियाट्रिक रेसिडेंट एटलीस्ट, क्योंकि बच्चों के साथ आपको रहना है, बच्चों के साथ ही आप सारी चीज़ें कर रहे हो. इंटर्नशिप में क्या लगता है कि ठीक है, यू
आपके ऊपर है लोग, मेडिसिन में आपको चांसेस मिलते हैं, मेडिसिन ब्रांच में चांस मिलते हैं, बट पीडियाट्रिक ब्रांच में शायद चांस बहुत कम मिलते हैं, राइट? हाँ. So let's go on with the next question, ma'am. What is the working hour right now currently in your residency? Currently on duty को, when I'm on duty currently I'll be working for 30 hours. I Oh. came at 8, I'll leave at 2 tomorrow. कल संडे तो हो सकता है जल्दी निकल पाऊँ, but usually I come at 8 and leave at 2. Then again शाम को evening rounds पे आना पड़ता है, and then 12 hours. And most cases it's the same. So it's hectic. हाँ. It's pretty much hectic. Yes. तो वर्किंग आवर भी हेक्टिक है, तो शायद वर्क लाइफ बैलेंस अभी तो है नहीं. अभी तो नहीं है. तो आफ्टर रेसिडेंसी वर्क लाइफ बैलेंस You कैसा है can मैम? choose between ICU duties and non-ICU duties. Okay. If you choose to do ICU duties, थोड़ा हेक्टिक होगा. बट इफ यू चूज के ठीक है मैं 9 to 5 OPD देखूंगी या फिर 8 to 2 OPD देखूंगी हॉस्पिटल में, अपने OPD आज फिक्स कर लूंगी, देन यू कैन बी फ्लेक्सिबल विद योर टाइमिंग. ओह नाइस. तो मतलब ठीक है, रेसिडेंसी हेक्टिक है, बाद में आपकी मर्जी, आपको क्या करना है ना? तो लेट्स गो ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम. व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ दिस ब्रांच? बड़े सिटीज में ऐसा लग रहा है कि सैचुरेशन आ रहा है गिवन द सुपर स्पेशलिटी एंड ऑल, बट अभी भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता छोड़ के बाकी सारे सिटीज में एमडी पीडियाट्रिक्स विल गिव यू अ वेरी गुड एक्सपोजर टू पेशेंट. नौकरी मिल जाती है, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन डूइंग SS, एंड पीपल विल ऑलवेज कम टू यू. बच्चे हमेशा पैदा होंगे, बच्चे बीमार पड़ते रहेंगे, पीपल विल ऑलवेज कम टू यू, एंड द better you are with dealing with the parents, more and more will come to you. So it's about how good you can communicate with them. तो मैम का यही है कि पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है उस हिसाब से बच्चे भी बढ़ रहे हैं, तो पीडियाट्रिक वालों के लिए सैचुरेशन कभी आने नहीं वाला है. तो व्हाट अबाउट स्पेशलाइजेशन मैम? It's up to you. If you are passionate about neonatology, then you can pursue neonatology. Super speciality में if you do super speciality, then you can join big hospitals, bigger hospitals like Fortis, Apollo, ये लोग ले लेते हैं. वहाँ पर सिर्फ एमडी पीडियाट्रिक्स I don't think will suffice. ओके ओके. तो दीज आर द फ्यूचर स्कोप. सो अब आप ही बताइए नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट ब्रांच हम कौन सी ले, एंड पिन डाउन योर ओन क्वेरीज कि आपको और क्या क्या क्वेरीज है इस रिलेटेड ब्रांच से. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.